So now I'm going to start your first chapter. Not it is second chapter, and since the beginning I am just taking a recapitulation, okay, so that you all may be familiar with the term, whether who are absent or not. Come back to the point. Okay, now tell me, what is called rational number? Who can answer me? Tell me, Sir, may I? please, please, Sir, may I? please, tell me. Sir, a rational number is a number which can be written in the A, B, where A and B are integers and B is not equal to 0. सुपर, वेरी गुड। देखो बच्चों, आपने Sir, जो may I? एक मिनट, अभी जो बोला गया है वो बिल्कुल सही है। तो मैं एक बार आपको बताऊं, जब रैशनल नंबर आप सीखते हैं ना, व्हेन यू स्टार्ट विद अ रैशनल नंबर, तो आपको एक नया नाम जानते हैं आप पहले से, दैट इज फ्रैक्शनल नंबर। तो मुझे इसका डेफिनेशन बता दो, व्हाट इज फ्रैक्शनल नंबर। जो बच्चा इसका डेफिनेशन बनाएगा बताएगा, आज वो बच्चा सबसे पहले मैं उसका नाम बिल्कुल याद रख लूंगा। व्हाट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल नंबर, क्योंकि ये क्लास फोर्थ में स्टार्ट हुआ था। सो हु विल आंसर दिस फ्रैक्शनल नंबर? टेल मी, एनीबडी कैन आंसर? It is a number in the form of A by B. यस, ऑफ कोर्स। एंड Sir, a Part fraction of a whole is number is called Sir, fractional A number. and B and two and the two part of dimensional a number. okay, one a student, part one student has told me something about whole number. Who is that boy? sir, may I? नाम क्या था उसका जिसने होल नंबर बोला था? Sami, नाम Sir, नाम Ayush बताइए। Sharma. आयुष Divan शर्मा। Saran. शिवांश बोले थे होल नंबर, करेक्ट। Sir, Ayush sir, मैंने भी चलिए, अगर होल नंबर आप दोनों ने बोला है, आयुष एंड शिवांश, तो दोनों बच्चों को बताऊं कि आप दोनों बिल्कुल सही थे। देखो, व्हेन वी हैव स्टडीड दिस फ्रैक्शनल नंबर, वी आर इन क्लास 4, और क्लास 4 में हमारे पास क्या क्या नहीं पढ़ना था? इंटीजर्स नहीं पढ़ना था। तो जब हमने इंटीजर्स नहीं पढ़ा था, तो हम इंटीजर्स के बारे में कोई जानते ही नहीं थे। हमें पता था केवल नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। तो फ्रैक्शनल नंबर इज अ नंबर, it is in the form of a by b, where a and b are whole number. But one more important point is that b is not equal to 0. Are you getting this? Screen is shown to you, everybody? Yes, sir. It is Yes, clear? sir. Yes, sir. अच्छा, क्लियर दिख रहा है? yes sir. चलिए, अब आते हैं, हम बात करते हैं रैशनल नंबर। और बहुत सारे बच्चों ने बताया दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो पहले मुझे ये बताइए, व्हाट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, होल Counting number is नंबर called natural number, sir. एंड होल Sir, नंबर? Counting number. it's Sir, called natural The number. number are started in 1 to 9 is called natural number. नॉट 9, अप टू इन्फिनाइट। Infinite. नेचुरल नंबर जो होता है, Whole number to start with zero. from 1 is called natural number. number should be started with 1 2 3 4 up to infinite. These all numbers are called natural number. Whole number, this number is Sir, numbers that are started from Number zero. Start zero to from infinite, 0 sir. and That number zero to infinite. infinite is also a number. Starts from 1 and in. okay. Now Zero to infinite, sir. what is z or I? These are the integers. Tell Sir, me, integer it is. what is integers? Sir, What The set- are the set integers? All natural numbers, zero the and negatives of counting numbers are called integers. Very good. Who is that? नाम बताइए अपना। Akansha. Akansha, I am happy. And one most important point is that I am impressed with the spellings you told to your teacher. That, sir, please note it down. My name is Akansha. That is good. Okay, Akansha, and you are right here. Z represents integers. And what is the definition of integers? Positive natural number, negative natural numbers टुगेदर विथ ज़ीरो। यानी इंटीजर्स जो होता है ना, वो नंबर लाइन पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया। ऑल पॉजिटिव नंबर विल बी
placed at the right side of the zero and all negative numbers should be placed at the left side of the zero. Clear? And these two arrows says that it does not come to an end. ये अगर स्टार्ट हुआ है तो ये आगे भी कंटिन्यू कर सकता है. चलिए, तो रैशनल नंबर में हम आते हैं. अब मुझे एक दो बात बताना है आपको. यहाँ पे आपने देख लिया है कि रैशनल नंबर के अंदर हमने जो बात किया, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है. इसमें कोई दिक्कत है बच्चों? नो सर. नो चलिए, सर. No, sir. आगे बढ़ते हैं. मुझे ये अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चों को ये पता भी था. अब बात करते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी. बच्चों, मैं इसको तो बिल्कुल डिस्कस करूंगा और जिस तरह से शिवांश और आयुष ने आंसर किया है उसी तरह से इसका आंसर मेरे को चाहिए कि व्हाट आर कॉल्ड Sir, क्लोजर Ayush Sharma. प्रॉपर्टी. या आयुष बोलिए. The sum of two integers is always an integer. The sum of two integers is always an integer. तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? The closure property A by है B कि plus अगर C हम by लोग D. दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो वो इंटीजर ही रहता है. कितना अच्छा आप बोलते हैं, वेरी गुड. लेकिन मैं चाहूंगा बच्चों म्यूट करके रखो क्योंकि आपकी आवाज डिस्टर्ब करती है क्लास को कभी कभी. ध्यान रखिए. आज हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में. और कोई बच्चा है जो क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से समझा सके? बोलिए. और किसका Sir, माइक if A अनम्यूट by है? A, वेट, sir, एक मिनट बच्चों. जब कभी भी ऐसा हो कि किसी बच्चे का अनम्यूट माइक हो, जैसे प्रभाकर है, तो प्रभाकर का अगर अनम्यूट माइक है ना, तो प्रभाकर अगर बोल नहीं रहे हैं तो ये बहुत गंदी आदत है. ठीक है, आपकी माइक अगर आपने कोई आंसर नहीं किया है तो आप अनम्यूट करके मत रखो, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपने हेडफोन नहीं यूज किया है तो आवाज बाहर का भी, बैकग्राउंड आवाज भी लेता है. ठीक है. रुद्रेश, डू यू हैव एनी आंसर अबाउट दिस? प्लीज. Yes, sir. बोलिए. The sum sir, of two if A rational by B number and is C by D always a are rational two number. rational number, then A by B plus C by D is also a rational number. If A by B and C by D are any two rational number, then A by B plus C by D is also a rational number. चलिए, मैं आपको बताता हूँ. आप लोगों ने तो ये अच्छे से बताया पर डिफाइन अच्छे से नहीं किया. चलिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को मैं अच्छे से समझाता हूँ. ठीक है, तो मुझे लगता है थोड़ा और क्लियर होगा. देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है अ प्रॉपर्टी इन विच यू आर पिकिंग एनी टू नंबर्स. आप ये जो दो नंबर ले रहे हो, नंबर 1 और नंबर 2, वो किसी एक ही तरह के सेट से ले रहे हो. जैसे मान लो हमने कहा नेचुरल नंबर, और आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी. अगर आपने ये दोनों नंबर नेचुरल लिया है और आपने कोई फंडामेंटल ऑपरेशन किया है. व्हाट इज फंडामेंटल ऑपरेशन? फंडामेंटल ऑपरेशन मीन्स या तो आपने ऐड किया है, या तो आपने सब्ट्रैक्ट किया है, या तो आपने मल्टीप्लाई किया है, या तो आपने डिवाइड किया है, या जो भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ने बोला है उस क्वेश्चन के अनुसार आपने सॉल्व किया है. और जो इन दोनों के नंबर को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट को हमें देखना है कि क्या वो रिजल्ट भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है क्या. फिर से एक बार रिपीट करूंगा. सी, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स यू हैव टू पिक two numbers or more than two numbers or the required numbers as given by the question. And if you are using some fundamental operations like add, subtract, into, division, and if the result of these fundamental operation also belong to the same set, the same group of number, then only you can say that this is called closure property. तो आप मुझे बताओ, क्या नेचुरल नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर में नेचुरल ही आएगा क्या? सोच के बताओ. यस सर. अगर हमने 2 को 12 से ऐड किया तो क्या आया? 14. ये 14 नेचुरल नंबर है. यस Yes, सर. sir. यानी ये हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ओबेज
यानी ओबे करता है, फॉलो करता है, होल्ड करता है, फॉलो करता है। क्या नेचुरल नंबर जो है वो फॉलो करता है एडिशन। एडिशन जो है ना वो क्लोजर प्रॉपर्टी होता है फॉर नेचुरल नंबर। लेकिन अब एक और बात आप मुझे बताओ, अगर मैं बोला होता सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन क्या क्लोजर होता? नो सर। नो सर। कौन कौन No. बोल रहा है नो, और कौन बोल रहा है Yes, यस? यस वाले बच्चे Yes, प्लीज नाम बताओ। सर प्रभा yes, sir. वेरी Sir, वेरी। Anshika. हाँ तो मैं ये बताता तो हूँ। तो इतने सारे बच्चे जो यस में आए हैं वो बिल्कुल गलत हैं, नो वाले सही हैं, क्योंकि सब्सट्रैक्शन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। देखो बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, और मेरे कंफ्यूज करने का मकसद होगा कि आपको करेक्ट करूं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैथ नहीं बनेगा। तो आप देखो यहाँ पे, अगर मैं 5 - 10 करूंगा तो व्हाट विल बी योर रिजल्ट? माइनस -5। तो 5 तो नेचुरल -1. नंबर है, 10 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या -5 नेचुरल है? No sir, positive. तो इसलिए Negative है। Negative sir, sorry sir, negative. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्लोजर है। नो सर। तो Yes नो sir. सर। तो समझ में आ गया ना? क्लोजर का Yes. मतलब हुआ कि जो नंबर को आपने लिया है 5 को और 10 को, और उसके बाद ये जो आपका फंडामेंटल ऑपरेशन था माइनस किया है, लेकिन रिजल्ट तो नेचुरल नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन सब्सट्रैक्शन। सर कोई भी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। देखिए ऐसे कैसे हम बोल दे, रैशनल नंबर जो है ना वो फॉलो करता है सब्सट्रैक्शन। रैशनल नंबर जो है वो फॉलो करता है, क्योंकि रैशनल नंबर में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होता है। तो आपका आंसर अगर नेगेटिव आए तो भी सही, पॉजिटिव आए तो भी सही, और जीरो आ जाए तो भी सही। समझ में आया? तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि दीज प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलोड इन सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बट आपको मुझे बताना था क्लोजर प्रॉपर्टी को अच्छे से, कि आपको समझ में आ जाए कि क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है। अब क्लियर है बच्चों क्लोजर? Yes sir, positive. चलिए तो यहाँ देख लीजिए, जब हमने नेचुरल नंबर लिया तो हमने बोला कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, बट हमने क्या देखा? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड अंडर सब्सट्रैक्शन। क्लियर है? यस सर। तो याद रखिएगा, sir. मल्टीप्लिकेशन Yes, में sir. हमने देखा होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में तो क्लोज्ड है, ठीक है, लेकिन डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। अब आपको एक बहुत अच्छा मैं बात बताऊं, आप सभी को अगर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो ये जान के आपको मजा आएगा, क्योंकि ये चीज पता भी नहीं चलता, लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये बताता हूँ, ये बताओ 3 डिवाइडेड बाय 0 क्या होगा? Sir, 0. सर इनफिनाइट। जीरो? सर जीरो तो गलत सर है जीरो आंसर। कैनॉट बी डिवाइडेड सर विद इनफिनाइट। नंबर। चलिए आप बताइए, Yes. 0 बाई 3 क्या होगा? सर 0. नॉट डिफाइन। 0 बाई 3 0 होगा। Yes sir, इसका Okay. 0 होगा। ऊपर है sir, वो ऊपर वाला गलत बताया था। हाँ तो ऊपर वाला गलत होता है, तो क्या होगा इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 0? सर इनफिनाइट। Undefined. नॉट डिफाइन। क्यों होगा नॉट डिफाइन, कोई बताएगा मुझे? सर नीचे में क्योंकि 0 है इसी के लिए। तो नहीं नीचे तो कोई भी अंक रहा है। उसका कारण तो होना चाहिए ना। देखिए अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको मुझसे भी तो पूछना चाहिए ना, और अगर हमें पूरा कारण कंफर्म कॉन्फिडेंटली नहीं पता है तो फिर आपको बोलना चाहिए कि सर आप मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि मेरे को तो यही जॉब दिया गया है, आपको हैप्पी रखना है, आपको सब कुछ बताना है। तो क्या मैं बताऊं? Yes sir. तो Yes, चलिए sir. बताने के पहले छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। मान लो अगर आपको टेबल याद नहीं होता और मैं बोलता 3 × 4 क्या होगा, तो आप क्या करते? 12. इंटू करता। नहीं तो Multiplication, मैंने तो बोला ना आपको। सर 3 को 4 बार जोड़। सुपर्ब, करेक्ट।
तो यहाँ हम क्या करते, 3 को 4 टाइम्स ऐड करते और क्या आता हमारे पास आंसर 12। 12। तो मैं आपको एक बात बताऊं, मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है रिपीटेड एडिशन। क्या नाम है? रिपीटेड एडिशन। ओके, so the another name of multiplication is repeated addition. in the same way, अगर मैं आपको बोलता 12 को डिवाइड करना है हमें 3 से, तो रिजल्ट क्या आएगा? आपको टेबल नहीं आता? सर तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करते। सर 3 को रिपीटेड करेंगे 4 बार। यानी आप कह सकते हो कि डिवीजन इज अनदर नेम ऑफ रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। सही है, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन। तो एक बात बताओ, आप लोग सारे बच्चे ये चीज हल्का सा भूल गए थे ना, जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे अपना बचपन, जब हम रिपीटेड एडिशन करके मल्टीप्लाई करते थे, हम लोग कहीं कहीं भूल रहे थे कि नहीं बच्चों? सही बताना। यस सर। और ये जो रिपीटेड सब्सट्रैक्शन है, ये भी हम लोग भूल रहे थे नहीं। तो अब हम लोग ये ध्यान रखेंगे। अब एक बात आपसे पूछता हूं मैं, मुझे आप बताओगे, अगर मैं बोलूं कि 5 into 0 करना है तो क्या करना है? इक्वल टू 0। 0 जीरो को Zero कितनी sir, बार ऐड zero। करना है? 5 Sir, 5 times. और रिजल्ट इक्वल क्या टू आएगा? 0 ही होगा। 0। 0 Sir, 0. और अगर मैं बोल दूं 5 से डिवाइड करना है 5 को 0 से, तो क्या होगा? इनफिनाइट। 5 Sir, में not defined. वेट, उसका कारण बता रहा हूं। 5 में हम क्या करेंगे? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे। किसका? 0 का। 0 का। और हम उतनी बार करेंगे जब तक कि रिजल्ट 0 ना आ जाए। तो क्या यह संभव है कि 0 आएगा कभी? No, sir. No, sir. तो आपको ये पता चला कि किसी नंबर के नीचे अगर 0 होता है तो हम नॉट डिफाइन क्यों लिखते हैं? क्योंकि 0 को लगातार घटाने के बाद भी कभी भी नॉट 0 आ ही नहीं सकता, है ना? समझ में आया? तो इसी वजह से हम लोग 1/0 को भी क्या लिखते हैं? नॉट डिफाइन। 10/0 भी क्या होगा? नॉट डिफाइन। और कोई भी नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 होगा, दैट मीन्स द रिजल्ट विल बी नॉट डिफाइन। क्लियर है? Defined. अब समझ में Yes, आ sir. गया? ये वाला कॉन्सेप्ट Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. यस सर। मजा आया ये समझ करके? रिपीटेड Yes, sir. एडिशन, रिपीटेड Yes, सब्ट्रैक्शन। वेरी वेरी गुड, आई एम हैप्पी कि आप सबको मजा आ रहा है। चलिए अब हम आते हैं। देखो, रैशनल नंबर तो पढ़ा हुआ है आपका, मुझे कोई ऐतराज नहीं है कि आपने वो पढ़ा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन हमने जो नया नया चीज जाना है इसमें, बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी, आई कैनॉट से कि हमने रैशनल नंबर पढ़ा है, ठीक है। और आपको एक खास बात बताऊं, क्लास 12 में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका एक चैप्टर आता है जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जाता है, और बच्चे जो है ना बचपन में क्लोजर पढ़ते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, तो उनको वहाँ दिक्कत होने लगती है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस क्लोजर को एकदम अच्छे से समझ बूझ करके रखो, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। रेडी? चलिए, तो अब हम देखते हैं आगे। रैशनल नंबर के बारे में आपने जाना, और ये रैशनल नंबर हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शनल नंबर भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और 0 भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, क्या ये रैशनल नंबर है 1? Yes, sir. यस यस 1 रैशनल नंबर Yes, है sir. सर। बच्चों? उसके नीचे क्योंकि 1 है सर, उसके Yes, भी नीचे sir. 1। No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है। कौन बोल रहा है No, sir, नहीं है? नहीं है, नाम sir. बताइए बेटा आप लोग। Sir, है. Sir, सर yes. है सर, इसके नीचे 1 है। इसके नीचे 1 है। कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। आप लोग बताने से क्या होगा, मैं पूछ भी लेता हूँ। जो जो बच्चे हमारे सही गलत सबका नाम जानना मेरे को जरूरी है। तो मुझे आप बताइए फटाफट, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके यस और नो का आंसर कीजिए। मैंने जो नंबर दिया था, मैंने दिया है 1 के बारे में, तो फटाफट यस नो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट। आई वांट टू सी कि हाउ मेनी ऑफ यू have commented with yes and how many of you have commented with no.
अधिकतर बच्चों का यस आ रहा है जवाब, नो वाले बच्चे कहाँ गए? ओ माय गॉड, अधिकतर बच्चे यस है। सत्यम म्यूट करो बेटा। चलिए, तो यहाँ पे सारे बच्चे यस बोल रहे हैं और मुझे मेजोरिटी के साथ जाना होगा। यस इज द राइट आंसर, 1 है रैशनल नंबर। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो नेचुरल हों, देखिए यहाँ देखिए, एक छोटा सा मैं घर बनाता हूँ। ये छोटा घर है किसका? नेचुरल नंबर का। और नेचुरल नंबर किस घर के अंदर है? होल नंबर के घर के अंदर। और होल नंबर किस घर के अंदर है? इंटीजर, जेड इंटीजर। सर इंटीजर। होल नंबर जो है वो फ्रैक्शनल नंबर के अंदर है। अभी हमने बात किया था क्या फ्रैक्शनल नंबर? यस सर। सर और ये फ्रैक्शनल नंबर जो है वो किसके अंदर है? रैशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि ये जो होल नंबर है और रैशनल नंबर, अगर हम इंटीजर्स के बारे में बात करें तो इंटीजर्स के घर के अंदर होल नंबर होगा, ये सही है। लेकिन इंटीजर में हमारा आता है -3, और ये -3 फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता। इंटीजर तो होता है पर फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, समझ गए? तो इसलिए याद रखना, फ्रैक्शनल नंबर केवल पॉजिटिव होता है, जबकि रैशनल नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों का पहला जो एक्सरसाइज है, ये कम्यूटिविटी क्या है भाई? कौन बच्चा बताएगा कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिविटी क्या है ये? कम्युनिकेशन मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है? कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? सर वाह, बहुत करेक्ट वर्ड है, संवाद। तो कम्यूटेटिव मतलब होता है कि जब हम किसी दो रिलेशन के बीच, हम किसी दो नंबर के बीच हम कुछ ऐसी बात करें जो बात एक्सचेंज कर देने पे भी रिजल्ट में बदलाव ना हो। यानी हम कह रहे हैं बात कि मान लिया जाए दो सर, जी बोलिए प्लीज। a by b plus c by d is equals to c by d plus a by b। अच्छी बात है, आपने रैशनल नंबर के फॉर्म में बताया। मैं बोलने वाला था केवल इतने फॉर्म में कि a इज एनी नंबर, नंबर मीन्स कोई भी नंबर है, और b इज एनी नंबर, ये भी कोई भी नंबर है। अगर इसका रिजल्ट b प्लस a आता हो तो हम कहेंगे कि ये क्या है? होल्ड करता है, और प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, नेचुरल नंबर में भी फॉलो करेगा, होल नंबर में भी फॉलो करेगा, फ्रैक्शनल नंबर में भी फॉलो करेगा, और रैशनल नंबर में भी फॉलो करेगा। तो ए बी एनी रैशनल नंबर, बी इज एनी रैशनल नंबर, और इसके सम को अगर हम ऑर्डर अरेंज कर दे तो भी क्या होगा? ये इक्वल होगा। तो हम इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब आपने बोला था कि सर a बाई बी बी द फर्स्ट रैशनल नंबर, c बाई d is the second rational number, so the order is exchanged here, c by d by plus a by b is also, these two are equal, so we can इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि ये भी प्रॉपर्टी क्या है? हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये नंबर होल हो, नेचुरल हो, कोई भी नंबर हो, पर एक बात आप कहोगे कि क्या होल नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन होगा कि नहीं होगा? ये आपसे क्वेश्चन है। डिवीजन में होल नंबर, ये अंडर होल नंबर, क्लोज्ड मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ये सही है? यस है या नो है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए तो फटाफट। आई वांट टू सी कि आप में से कितने बच्चे हैं जो ये बताने वाले हैं मुझे आज।
कि यस सर ये होता है या नहीं होता है, जल्दी से मैं देखूं यस और नो में। तो अधिकतर बच्चों का नो आ रहा है मैसेज, नो वाले से तो मैं पूछूंगा, लेकिन यस वाले बच्चों का भी मैं देखना चाहता हूँ कि यस वाले बच्चे जो है ना वो क्या यस नहीं आया, किसी का नहीं आया। आयुष शर्मा यस नहीं बोले आप? ओह चलो सभी नो बोले, क्यों नो बोले? कोई मुझे उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो, बोलो। 0 से डिवाइड होता ही नहीं। क्या बात है, सुपर्ब। आप कह सकते हो कि सर होल नंबर में जीरो भी आता है, तो अगर हम किसी भी नंबर को जीरो से जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो होल नंबर नहीं आएगा, ठीक है? सर अभी बताया था हाँ ऊपर में जी, सर। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन बताने के बाद जब पूछ लेता हूँ तब न कंफर्म होता हूँ, क्या समझे? अगर मैं नहीं पूछता तो क्या होता, कंफर्म नहीं हो पाता, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम रैशनल नंबर में यहाँ पे है हमारा एडिशन, ठीक है, कम्यूटेटिव होगा। और मुझे लगता है आप सारे के सारे बच्चों ने ये बनाया होगा, ठीक है? यहाँ पे ये टेबल भी दिखा रहा है कि कम्यूटेटिव कब कब होगा, ठीक है? तो इंटीजर जो है वो सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? नंबर बदल जाता है ना। अगर मान लो हमने कहा 3 - 5 तो इसका आंसर क्या आएगा? -2। -2। और अगर हमने कहा 5 - 3 तो क्या आएगा? 2। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है ना। तो जब इक्वल नहीं है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता। डिवीजन तो पता है 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। तो आप जल्दी से मुझे होल नंबर के दो नंबर को एग्जाम्पल में भेज दो मैसेज बॉक्स में कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर भी होल नंबर आएगा। और इसी तरह से मुझे ये भी भेज दो कि कौन से दो होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन होल नंबर नहीं आएगा। तो एक आंसर लिखना जब होल नंबर आता हो सब्ट्रैक्शन, और एक आंसर लिखना जब होल नंबर नहीं आता हो सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना? जल्दी से करो होल नंबर के लिए, मैं देखना चाहता हूं जल्दी से आपका कमेंट बॉक्स। होल नंबर के लिए करना है आपको, एक होल नंबर होना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे 2 + 2, 2 + 5, 2 - 5, इस तरह से कुछ भी नंबर दो। एक होल नंबर होना चाहिए और एक होल नंबर नहीं होना चाहिए। प्लीज क्विक क्विक, वेरी क्विक। वाह, 3 × 5, लेकिन साथ में इक्वल के साथ में देना चाहिए आपको, इक्वल का नाम भी देना चाहिए। सर -3 + 4। -3 + 4, वेरी गुड। तो ये क्या होल नंबर होगा? -3 + 4 सर ये यस 3 सर। तो होगा, -3 तो होल नंबर होता ही नहीं है, तो आप होल नंबर कैसे ले सकते हैं? होल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव और जीरो होता है। सर 3 × 5 हो सकता है ना? बिल्कुल, ये मल्टीप्लिकेशन का है, बट आंसर भी लिखना है आपको। यू हैव टू राइट द आंसर्स टू। ओके, सो विदाउट राइटिंग आंसर हाउ कैन यू से कि या यू आर करेक्ट? ओके, so I am happy that you all have used my class, and just going to complete or sum up the class, I want to mention again what we have studied today. So wait a minute and I will just going to sum up your class. Okay, now see, we have started with fractional number, what we have studied in class 4. And what we studied in fractional number? A number is in the form of a by b where a and b are whole number. Okay, तो हमने यहाँ देखा था कि a and b दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? होल नंबर से। बिलोंग मतलब होता है मेंबर होना, जहाँ पे b इक्वल नहीं होता है 0 से। बिल्कुल सही है। उसके बाद हमने पढ़ा 3 नंबर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में हमने पढ़ा, होल नंबर के बारे में हमने जाना, और इंटीजर्स को भी हमने जाना। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि हमें जो है कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में हमने जाना कि ये फंडामेंटल ऑपरेशंस
क्लोजर प्रॉपर्टी में है या नहीं। फिर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को जाना कि पिक टू नंबर, डू फंडामेंटल ऑपरेशन एंड इफ द रिजल्ट बिलोंग टू द सेम प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड फंडामेंटल। फिर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी जाना। तो ये सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स के साथ हमने देखा कि कैसे रैशनल नंबर जो है वो सारे, फ्रैक्शनल नंबर को तो कह सकते हैं हम रैशनल नंबर, बट वी कांट से कि ऑल रैशनल नंबर्स आर फ्रैक्शन। हम लोग सारे नेचुरल नंबर को तो होल नंबर कह सकते हैं, बट वी कांट से कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। और एक और चीज़ हमने 1/0 नॉट डिफाइन को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। यस सर। मजा आया क्लास में? Yes, sir. यस सर आपको। Yes, sir. तो फिर से कल एकदम पूरे बच्चे, सारे बच्चे क्लास में प्रेजेंट रहोगे, क्योंकि फिर कल हम लोग मजा करेंगे। यस सर। ओके बाय, गुड डे, टेक केयर। थैंक यू सर। Thank you, sir.